हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 कवर किया था इंडियन ज्योग्राफी को। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 कवर करेंगे जिसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉइल, इंडिया में कौन कौन से टाइप के सॉइल मिलते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, उसमें कौन से टाइप के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, वो सब हम आज इस चैप्टर के थ्रू कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर थॉट about the most important factor which supports the tree, grasses, crops, and numerous life forms over the earth's surface? Can you grow a blade of grass without the soil? While some plants and organisms which are aquatic in nature can sustain in water, do they not derive nutrients from the soil through water? You will realize that the soil is the most important layer of the earth's crust. So, it is a valuable resource. The bulk of our food and much of our clothing is derived from land-based crops that grows in the soil. The soil on which we depend so much for our day-to-day needs have evolved over thousands of years. The various agents of weathering and graduation have acted upon the parent rock to produce a thin layer of soil. सो हमने देखा है कि हमारे कोई भी क्रॉप है, सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फूड, राइट। सर्वाइवल के लिए हमारे फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट हम लोग देखें कि अगर हमें जैसे क्रॉप कोई भी उगाना है या फिर कोई भी प्लांट उगाना है तो वो बिना सॉइल के नहीं उग सकती। इसलिए बोला गया कि सॉइल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि सॉइल ही है जिस पे हम लोग भी रह रहे हैं, जहाँ पे क्रॉप्स भी ग्रो कर रही हैं। सो इसकी वजह से उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर बोला गया है। ओके, उसके बाद बताया गया कि वेरियस एजेंट सच एज वेदरिंग, ग्रेडेशन मतलब टूटना उठना रॉक्स का, हैव एक्टेड अपॉन द पैरेंट रॉक टू प्रोड्यूस अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। सो इनके कहने का ये मतलब है, सपोज एक रॉक होता है, इस पर वेदरिंग के थ्रू इस पर ब्रेक डाउन होता है इसका, और इसकी वजह से हमारे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हमें कहाँ से सॉइल मिलता है? उनके पैरेंट रॉक से। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस and organic matter which develop on the earth's surface. The major factors affecting the formation of soil are relief, parent material, climate, vegetation and other life forms and time. So अगर पूछे हमसे कि फैक्टर क्या हैं जो जिस पे डिपेंड करता है हमारा सॉइल का फॉर्मेशन, तो आप क्या बोलोगे? तो फैक्टर्स में आ जाएंगे हमारे रिलीफ फीचर्स, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, या फिर ऐसे कुछ अर्थवॉर्म्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, वो एंड टाइम पे। ओके, बिसाइड दिस ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस टू अ लार्ज एक्सटेंट। सो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर मिनरल मटीरियल, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। सो हमारे टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना मिनरल मटेरियल है, कितना ह्यूमस है और कितना वाटर है। सम सॉइल आर डेफिसिट इन वन और मोर ऑफ दिस, while there are some that have varied combination. Have you ever dug a pit in the field of your school to plant a tree while celebrating Van Mahotsav? Was the pit of uniform layer of soil, or did you notice different colors from top to bottom of the pit? If we dig a pit on the land and look at the soil, we find that it consists of 3 layers, which is called the horizons. Horizon A is the topmost zone, where organic matter has got incorporated with the mineral material, nutrients and water which are necessary for the growth of the plant. Horizon B is a transition zone between horizon A and C, and contains matter derived from below as well as from the above. It has some organic matters in it, although the mineral material is noticeably weathered. Horizon C is composed of loose parent material. This layer is the first stage of the soil formation process and eventually forms about 2 layers. This arrangement of layer is known as the soil profile. Underneath these 3 zones, there is a rock which is also known as the parent rock or the bedrock. Soil, which is a very complex and varied entity, has always drawn its attention to the scientists in order to understand its importance, and it's essential to attempt a scientific study of the soil. Classification of the soil on efforts to achieve its objective. Okay,
सो यहाँ पे हमें बताया गया इस पैराग्राफ में कि जब आपने देखा होगा कि आप जब सॉइल को आप डिग करते हो तो उसमें अलग अलग डिफरेंट लेयर्स आती है। सॉइल का भी कलर जैसे जैसे हम डीप डाउन जाते हैं उसका कलर डार्क होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग जो हमारी सॉइल की लेयर है वो अलग अलग मिनरल कॉम्पोजिशन, ह्यूमन एंड वाटर कंटेंट से बनी होती है। इसकी वजह से उनका कलर में डिफरेंस आता है। ओके, उसके बाद हमें यही बताया गया है कि सॉइल के तीनों लेयर के बारे में। सो ये अगर हमें एक बना दे प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, और उसमें 3 लेयर्स बना देते हैं। ये हो जाएगा हॉरिजॉन ए, ये बी एंड देन सी। तो बताया गया है कि सबसे पहला जो हॉरिजॉन है वो टॉप मोस्ट होता है और उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, और मिनरल्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ पे मिनरल्स मिल जाएंगे, वाटर मिल जाएगा, ह्यूमस मिल जाएगा, ओके, एंड न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। फिर बात किया जाए हॉरिजॉन बी की, तो ये ट्रांजिशन जोन होता है हॉरिजॉन ए और सी के। एंड इसके अंदर थोड़े से ऑर्गेनिक मैटर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर आपको मिल जाएगा, प्लस थोड़े मिनरल्स मिलेंगे जो मिनरल्स वेदर्ड हो चुके हैं, मतलब टूट चुके हैं। ओके, और फिर आता है द थर्ड लेयर या फिर हॉरिजॉन सी। ये फर्स्ट लेयर होती है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे पहले सबसे नीचे वाली लेयर बनेगी, उसी के ऊपर सॉइल बनते बनते ऊपर की लेयर्स बनती जाती है। ठीक है, फिर यही बताया गया, और ये पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। और इन सब के नीचे होता है क्या? पेरेंट रॉक, जिसकी ब्रेकडाउन से हमारा सॉइल, रॉक और ये सब बनते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की। सो इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रिलीफ्स and vegetation type. These have contributed in the development of various types of soil in India. In ancient times, the soil is used to be classified into 2 main groups, Urvar and Usar, which were fertile and sterile, respectively. So क्या हो गया? उर्वारा सॉइल हमारा हो गया फर्टाइल, एंड उसारा सॉइल हो गया स्टेराइल। फर्टाइल मतलब जहाँ पे इसमें उर्वारा वाले में क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करेंगे और यहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। In 16th century, soils were classified on the basis of the inherited characteristics and external features such as texture, color, slopes of land, moisture contained in the soil. Based on the texture, soil material has been identified as sandy, clay, silty and loamy. On the basis of the color, they are red, yellow and black, etc. Since independence, scientific surveys of soils have been conducted by various agencies. Soil Survey of India, established in 1956, made comprehensive studies of soil in selected areas like the Damodar Valley. The National Bureau of Soil Survey and the Land Use of Planning and Institute under the control of Indian Council of Agriculture Agriculture Research did a lot of studies on Indian soil. In fact, in their efforts to study soil and to make it comparable at the international level, ICAR has classified the Indian soil on the basis of the nature and the character as per the United States Department of Agriculture Soil Taxonomy. So यहाँ पे क्या बताया गया है हमें कि हम सॉइल को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर, कलर, स्लोप और मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस पे हम सॉइल को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब जब इन सब में डिवाइड करेंगे तो कुछ इस टाइप, कुछ सैंडी सॉइल हमें मिलती है, कुछ हमें क्ले सॉइल मिलती है, कुछ हमें सिल्टी सॉइल मिलती है। सिल्ट मतलब सिल्ट इज अ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स कैन बी कॉल्ड एज सिल्ट, ओके, एंड कुछ लोमी सॉइल मिलती है। Even soil on the basis of color can be classified, such as red soil, yellow soil, black soil and etc. फिर बताया गया कि हमारा जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो 1956 में दामोदर वैली की जो वहाँ पे बहुत सारी स्टडीज़ हुई और नेशनल सर्वेज हुए। इवन हमारे ICAR ने सॉइल को क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर एंड कैरेक्टर एज पर जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की टेक्सोनॉमी है उसके बेसिस पे। ओके,
On the basis of genesis, color, composition, location, the soil of India has been classified into alluvial, black, red, laterite, arid, saline एंड फॉरेस्ट सॉइल. सो हम ऑन द बेसिस ऑफ ये सब के बेसिस पे क्या हो गया, कलर, जेनेसिस, कंपोजिशन, हमारा जो इंडियन सॉइल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 7 पार्ट्स, सॉरी 8 टाइप्स में क्लासिफाइड है. सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एलुवियल सॉइल के बारे में. एलुवियल सॉइल आर वाइड स्प्रेड इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैली. तो एलुवियल सॉइल की हमें अगर लोकेशन पूछी जाए तो कहाँ पे आ जाएगी, हमें मिल जाएगा वो नॉर्दर्न प्लेन्स में और रिवर वैलीज में. दिस सॉइल कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ द कंट्री. तो अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सी सॉइल प्रेजेंट है इंडिया में, तो वो हो जाएगी हमारी एलुवियल सॉइल. दे आर डिपोजिशनल सॉइल, मतलब वो डिपॉजिट होते हुए बनती है, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. Though a narrow corridor in Rajasthan, they extend to plains of Gujarat. In peninsular region, they are found in deltas of east coast and in the river valley. So इस पूरे पैराग्राफ में हमें इसकी एलुवियल सॉइल की लोकेशन बताई गई. हमें ये पता चला कि एलुवियल सॉइल है कि जो कि सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में या फिर पूरे इंडिया में. फिर ये हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है प्लस रिवर वैली में मिलता है. ये एक डिपोजिशनल सॉइल है, डिपॉजिट होने की वजह से फॉर्मेशन होती है इसके. और ये क्या है, रिवर्स के जो भी डिपॉजिट मिनरल्स हैं वो सब ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह डिपॉजिट होकर एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, फिर हमने देखा कि और वो डेल्टाज ऑफ ईस्ट कोस्ट पे भी मिलता है. नेक्स्ट, एलुवियल सॉइल वेरीज इन नेचर फ्रॉम सैंडी, क्लेई टू लोमी. तो हमारा जो एलुवियल सॉइल है वो नेचर उसका सैंडी, लोमी टू क्लेई पे डिपेंड करता है. These are generally rich in potash but poor in phosphorus. तो अगर आपको बोले कि इसके कंटेंट क्या है तो आप बोलोगे कि ये पोटाश तो है उसमें रिच है बट लैक करता है फॉस्फोरस पे लैकिंग है. In the upper and the middle Ganga plain, 2 different types of alluvial soil have deposit, that is Khadar and Bhangar. तो हमारे जो ये रिवर गंगा प्लेन है वहाँ पे हमें 2 टाइप के एलुवियल सॉइल मिलते हैं. एक हो गया खादर एंड द सेकेंड वन इज भांगर. खादर इज द न्यू एलुवियल सॉइल एंड इज डिपॉजिटेड बाय फ्लड्स एनुअली विच एनरिचेस द सॉइल बाय डिपॉजिटिंग फाइन सिल्ट. तो खादर हमारा न्यू एलुवियल सॉइल होता है जो कि फ्लड की वजह से डिपॉजिट होता है और ये बहुत फाइन स्लिट्स होते हैं. भांगर बीइंग द Bhangar being the old soil, older alluvium deposit away from the floodplain. So ये away from the floodplain से deposit होता है and this is deposited towards the floodplain. Both the Khadar and Bhangar soil contain calcareous concentration of kankars. These soils are more loamy and clayey in the lower and the middle Ganga plain and Brahmaputra valley. So जब ये soils हमारी lower and middle गंगा प्लेन्स में जाती है तो ये और ज़्यादा क्या होता है, लोमी और क्लेई बन जाते हैं. द सैंड कंटेंट डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो इस सॉइल में जो हमारी एलुवियल सॉइल है अगर वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है तो इसमें जो सैंड का कंटेंट है वो डिक्रीज हो गई. तो आप देख ही सकते हैं हमारे इंडिया के जो वेस्ट में वहाँ पे आपको राजस्थान मिलेगा जहाँ पे बहुत सैंडी एरिया, कंपेयर टू ईस्ट जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे आपको तब भी मॉइस्ट सॉइल मिलेगी. ओके, एलुवियल सॉइल आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड. सो एलुवियल सॉइल पे हम बहुत सारे टाइप की क्रॉप की कल्टिवेशन कर सकते हैं. द नेक्स्ट सॉइल वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ब्लैक सॉइल. द ब्लैक सॉइल कवर द मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज विच इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु. सो अगर आपको बोले कि लोकेशन या लोकेट करिए कि हमें कहाँ कहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगा तो वो कहाँ पे मिलेगा हमें, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और थोड़े पार्ट्स के तमिलनाडु में. इन द अपर रीच ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, द सॉइल इज़ वेरी डीप. तो जो हमारा अपर पार्ट है गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर का, वहाँ पे जो सॉइल मिलती है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है और बहुत ज़्यादा डीप है. दिस सॉइल आर ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल. द ब्लैक सॉइल आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल. तो अगर आपको पूछे कि इस ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं, अब क्या बोलेंगे कि वो डीप है, क्लेई है
और इम्पर्मिएबल है। इम्पर्मिएबल है मतलब क्या होता है? इम्पर्मिएबल का मतलब होता है कि उसमें वाटर पर्कुलेट नहीं कर सकता। दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन सेट एंड श्रिंक व्हेन दे ड्राई। तो जब ये इसमें जब पानी आता है तो ये स्वेलिंग हो जाती है इसमें, और जब इससे पानी चला जाता है तो ये श्रिंक हो जाता है। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द सॉइल डेवलप वाइट क्रैक्स। तो इसमें ड्राई सीजन के टाइम पे वाइट क्रैक्स भी हमें देखने को मिल सकता है। Thus they occur a kind of self-blurring because of this character of low absorption and of some moisture. The black soil retain the moisture for a very long time, which helps the crop, generally rain-fed one, to sustain even during the dry season. तो ये जो इसकी क्वालिटी है कि वो मॉइस्चर कंटेन कर सकती है, इसकी वजह से ये ड्राई सीजन में भी सस्टेन कर सकती है। ओके। केमिकली द ब्लैक सॉइल आर रिच इन लाइम। अगर इसका कॉम्पोजिशन पूछे तो क्या आएगा कि किस में रिच है? ये लाइम में रिच है। अभी हमने देखा था एल्यूमिनियम सॉइल वो किस में रिच थी? पोटाश में रिच थी और नाइट्रोजन में लेस थी। ओके, लाइम में एक्स्ट्रा है आयरन, मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम। तो इसमें लाइम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, मैंगनीज है। ओके, दे ऑल्सो कंटेन पोटैश। तो इसमें पोटैश भी प्रेजेंट है, बट लैक इन फॉस्फोरस। इसमें फॉस्फोरस नहीं है, लैक इन फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में। द कलर ऑफ द सॉइल रेंज फ्रॉम डीप ग्रे टू ब्लैक टू ग्रे। तो इसका जैसे कि नाम ही है ब्लैक सॉइल, तो इसका कलर ग्रे से ब्लैक के बीच में होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे सॉइल की, जो कि है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। द रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो हमारा जो रेड सॉइल है वो कहाँ पे मिलता है? हमें क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक की वजह से वो डिपॉजिट होता है जहाँ पे कम रेनफॉल है, जैसे कि ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। हमारा जो डेक्कन प्लेटू है उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे और सदर्न पार्ट है वहाँ पे हमें ये टाइप की सॉइल मिल सकते हैं। अलॉन्ग द पीरियोडिक जोन ऑफ वेस्टर्न घाट लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एरियाज इज ऑक्यूपाइड बाय रेड लोमी सॉइल। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन्स। द सॉइल डेवलप्स a reddish color due to the wide diffusion of iron in crystalline. तो इसमें आयरन की प्रेजेंस होती है, इसकी वजह से इसका कलर रेडिश होता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। सो आयरन होने की वजह से ये सॉइल हमें रेड कलर की दिखती है, और अगर इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में हम लोग डाल दें तो हमें कौन से कलर की दिखेगी? येलो कलर की। ओके। The fine grained red and yellow soil are normally fertile, whereas the coarse grain found in the dry upland areas are poor in fertility. They are generally poor in nitrogen, phosphorus and humus content. तो जो हमारे पास moist थोड़ा सा soil होता है वो fertile होता है comparatively to जो भी हमारे पास coarse grained का soil होता है उसमें fertility नहीं होती। Next we are moving to the laterite soil, or that is the topic third of our class. Laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. So हमारा जो laterite soil है वो किसका होता है? Bricks का होता है। The laterite soil develops in area with high temperature and high rainfall. So यहाँ इसके लिए कौन सी conditions चाहिए हमें? Conditions वो आ जाएंगे high rainfall and high temperature. These are a result of intense leaching due to tropical rainfall. ये सॉइल क्यों बनती है? लीचिंग की वजह से। जैसे कि एक लैंड पीस है हमारे पास, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है और ये रेनफॉल की वजह से जो ऊपर की मिट्टी सॉइल का जो न्यूट्रिएंट चला गया उसकी वजह से जो सॉइल बची नीचे की उसको हम लैटराइट सॉइल बोलते हैं। विथ रेन lime and silica are leached away, soil rich in iron oxide and aluminum compound are left. So रेनफॉल की वजह से हमारा जो सॉइल है उसमें सिर्फ सिलिका और आयरन सिलिका लीच हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम बचता है, जिसको हम लोग लैटराइट सॉइल बोलते हैं।
ह्यूमन कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड बाय बैक्टीरिया। तो इस सॉइल का जो भी ह्यूमस कंटेंट होता है वो कौन निकाल देता है? बैक्टीरिया दैट थ्राइव वेल इन हाई टेम्परेचर। दीज सॉइल आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, वाइल आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश आर इन एक्सेस। तो अगर पूछे हमें तो ये इसका कॉम्पोजिशन के बारे में, तो हमारे को क्या पता चलता है कि किस में लैक करते हैं? इनके पास नाइट्रोजन भी नहीं है, फॉस्फेट भी नहीं है, कैल्शियम भी नहीं है और ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं है, बट क्या बहुत ज़्यादा है? वो है आयरन ऑक्साइड और पोटैश। हेंस लेटराइट आर नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन। तो इसलिए इस पर कल्टिवेशन नहीं करते। हावेवर एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सॉइल फर्टाइल फॉर कल्टिवेशन, बट विद द यूजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर वी कैन मेक द सॉइल fertile. Okay, red laterite is in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala more suitable for tree crops like cashew nut. So अगर आपको पूछे क्या रेड लेटराइट सॉइल में कौन से टाइप के क्रॉप्स सुटेबल हैं, वो हो जाएगा कैश्यू नट। और पूछे रेड लेटराइट सॉइल हमें कहाँ पे मिलती है, तो वहाँ आ जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। लेटराइट सॉइल आर वाइडली यूज एज ब्रिक फॉर in-house construction. These soils have mainly developed in the higher areas of peninsular plateau. The laterite soils are commonly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and hilly regions of Odisha and Assam. तो यहाँ पे अब हमें इसकी लोकेशन भी पता चल गई कि कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। अब हमने जैसे कि आप देख सकते हैं 3 सॉइल के बारे में जान लिया। तो 4th सॉइल पे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक बार ये जो पहले के 3 सॉइल पढ़े हैं उसको वापस से रिवाइज करें। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम लोग को सॉइल की स्टडी करनी है तो हम लोग सॉइल को 8 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने एल्यूविलियम सॉइल के बारे में। तो जो एल्यूविलियम सॉइल है वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैली में पाया जाता है। ये 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री है, मतलब ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट कवर इसने ही किया हुआ है। ये डिपोजिशनल सॉइल है। डिपोजिशनल का मतलब कि रिवर के फ्लोज के थ्रू जो भी डिपॉजिट आते हैं वो इस पे आके डिपॉजिट हो जाता है, इसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फिर ये हमें डेल्टाज में भी मिलेगा जहाँ पे रिवर के ईस्ट कोस्ट पे। ओके, फिर एल्यूविलियल सॉइल हमारा सैंडी से लेके क्ले और लोमी तक हो सकता है। ये जनरली पोटैश में रिच होता है बट फॉस्फोरस में पुअर होता है। तो इसमें पूछे कि रिच क्या है, तो पोटैश रिच है और पुअर क्या आ जाएगा, तो फॉस्फोरस आ जाएगा। अब फिर हमने एल्यूविलियल सॉइल को 2 टाइप में डिवाइड किया था, एक था खादर, एक था भांगर। खादर इज नोन एज द न्यू एल्यूविलियम एंड भांगर इज नोन एज द ओल्ड एल्यूविलियम। और जो न्यू एल्यूमिनियम है उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो फाइन स्लिप्स में डिवाइड होता है, और जो ओल्ड एल्यूमिनियम है वो अवे फ्रॉम द रिवर प्लेन्स एक्यूमुलेट होता है। फिर हमने देखा कि ये दोनों भांगर और खादर दोनों में कैल्सिडियस मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ये दिस सॉइल्स आर मोर लोमी एंड क्ले इन द लोअर एंड द मिडल प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो सॉइल्स है ये ज़्यादातर लोमी और क्ले आपको लोअर और मिडल गंगा प्लेन में पाया जाएगा। फिर ये दिखाया गया था कि इसमें एक्सटेंसिवली हम लोग कल्टिवेशन कर सकते हैं। सेकेंड जो हमने पढ़ा था वो था ब्लैक सॉइल, जो कि डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कृष्णा और गोदावरी को कवर करता है। इसके बाद हमने देखा था उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिसमें हमने देखा था कि वो सेल्फ फ्लोइंग सॉइल है, इसको रेगुलर सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। ये भी क्लेई से लेके इम्परमिएबल, क्लेई होता है, डीप होता है, प्लस इम्परमिएबल होता है। फिर हमने देखा था कि इसका कलर, इसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो है, ये रिच होता है लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में, बट इसके अंदर जो नहीं होता है वो है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। फिर हमने बात की थी रेड एंड येलो सॉइल की। ये रेड सॉइल जो हमारा क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से फॉर्म होता है, ये जहाँ पे लो रेनफॉल होगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू वहाँ पे पाया जाता है। इसको हमने वेस्टर्न घाट में और देखा था। फिर ये सॉइल जो है हमारा रेड सॉइल, वो रेडिश कलर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, और जब ये आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो वो सॉइल येलो कलर का दिखता है। फिर हमने देखा था लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटर एक फ्रेंच लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रिक्स, और ये कहाँ पे पाया जाता है, या जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है। ओके, फिर ये जो सॉइल है उसमें
जब रेन बहुत ज़्यादा जहाँ पे रेन होती है वहाँ पे पाई जाती है और ये लीच कर जाती है जहाँ से इस सॉइल में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इसमें जो लाइम एंड सिलिका प्रेजेंट होता है वो लीच हो जाता है और ये सॉइल में सिर्फ आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम बचता है। फिर हमने देखा था कि इसमें ये पुअर है ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम के मामले में, और जो इसमें एक्सेस में पाया जाता है वो आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश, और ये सूटेबल है हमारे कल्टीवेशन के लिए। सूटेबल नहीं है बट अगर इसको एन्योर और फर्टिलाइज़र डाल दें तो ये सूटेबल हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग एरिड सॉइल की, तो ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ टाइप। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। They are generally sandy in structure and saline in nature. In some areas, the salt content is so high that the common salt is obtained by evaporating the saline water. Due to the dry climate, high temperature and accelerated evaporation, they lack moisture and humus. So यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें पता चल रहे हैं कि जो एरिड सॉइल है वो जनरली रेड टू ब्राउन कलर का होता है। फिर इसमें सेलाइन नेचर होता है, इसकी वजह से इससे हम लोग सॉल्ट का भी निकाल सकते हैं इससे जब इसमें इवापोरेशन हो जाएगा। फिर इसका ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट वहाँ पे ये सॉइल वहाँ पे आपको मिलेगा जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, एक्सीलरेटेड इवापोरेशन है। ओके, नेक्स्ट द कंटेंट इज नॉर्मल लोअर हॉरिजॉन ऑफ द सॉइल और ऑक्यूपाइड बाय कंकर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड. The conchal layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of the water and such when irrigation is made available. The soil moisture is readily available for sustainable plant growth. Arid soil are characterizingly developed in the western Rajasthan, which exhibits characteristic of arid topography. The soil are poor and contain little humus and organic matter. So, यहाँ पे पूरे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बता दिया कि इसमें कंकड़ की भी हमें प्रेजेंस मिलेगी, फिर जो कि हमें बॉटम हॉरिजॉन में मिलेगी। ये सॉइल वैसे तो सूटेबल नहीं है प्लांट ग्रोथ के लिए, बट इसमें अगर हम लोग पानी सप्लाई कर दें तो ये प्लांट ग्रोथ के सूटेबल है। ये हमें वेस्टर्न राजस्थान में मिलेगा और इसमें पुअर कंटेंट होता है ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर का। फिर हम बात करेंगे अब सिक्स है जो कि सेलाइन सॉइल। These are known as Upsara soils. The saline soils contain a large portion of sodium, potassium, magnesium and thus they are infertile. तो उपसारा सॉइल अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग सॉइल को उपवारा या उपसारा करके क्लासीफाई करते थे। तो उपसारा वो था जो कि अनफर्टाइल होता है, इनफर्टाइल होता है। फिर हमने देखा कि इसमें बहुत सारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का कंटेंट होता है जिसकी वजह से सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है। डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ, इसको कोई भी टाइप की वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होती बिकॉज दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट. They occur in arid and semi-arid region and in waterlogged and swampy areas. The structure range from sandy to loamy. They lack nitrogen and calcium. Saline rock are more widespread in western Gujarat, deltas of eastern coast, Sundarban area, West Bengal. In run of Kutch, the southernmost monsoon brings salt particles deposit thus as a crust. Seawater instructions in the delta promotes occurrence of saline soil. In the areas of intensive cultivation with excessive use of irrigation, especially in the areas of grain revolution, the fertile alluvial soils are becoming saline. Excessive irrigation with dry climate condition promotes capillary action, which result in the decomposition of soil salt on the top layer of the soil. In such areas, especially in Punjab, Haryana, farmers are advised to add gypsum to solve the problem of salinity in the सॉइल. तो यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होता है उसको सॉल्व करने के लिए फार्मर्स क्या ऐड करते हैं, जिप्सम. ओके, फिर अब हम बात करते हैं, हमने 6 सॉइल कर लिए सेलाइन सॉइल, फिर हम बात करते हैं पेटी सॉइल की. दिस आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी. अभी हमने एरिड सॉइल देखा जिसको हम लो रेनफॉल में पाया जाता है, और पेटी सॉइल जो होता है, पेटी सॉइल जो होता है वो हमें हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में पाया जाता है, where there is a good growth of vegetation. Thus, large quantity of dead organic matter accumulates in this area and this gives a rich humus and organic content to the soil. So, इस एरिया में हमें ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल बहुत सारे
ऑर्गेनिक मैटर्स इसमें डेड मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका जो ह्यूमस है और ऑर्गेनिक कंटेंट है वो बहुत हाई होता है। ऑर्गेनिक मैटर इन दिस सॉइल में भी अप टू 40 to 50%, तो इसमें 40 to 50% ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। ओके, these soils are normally heavy and black in color. At many places they are alkaline also. It occurs in the Bihar, southern parts of Uttarakhand, western parts of West Bengal, Odisha and Tamil Nadu. तो यहाँ पे हमें लोकेशन के बारे में भी पता चल गया कि जो पेटी सॉइल है उसको हम क्या बोलेंगे कि कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है। इसकी वजह से इसके अंदर डेड ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा होते हैं और जिसकी वजह से इसका ह्यूमस भी ज़्यादा होता है। इसमें अबाउट 40 to 50% ह्यूमस कंटेंट होता है और ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। फिर ये ब्लैक कलर की होती है, प्लस इसकी जो लोकेशन है वो है बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु एंड उत्तरांचल के कुछ रीजन। ओके, नेक्स्ट इज अवर फॉरेस्ट सॉइल, जो कि आ जाएगा हमारा 8th टाइप। एज द नेम सजेस्ट, फॉरेस्ट सॉइल आर फॉर्म्ड बाय द फॉरेस्ट एरिया वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल। This soil varies in structure and texture depending on the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty on side valleys and coarse grain in the upper slope. In the snow-bound areas of the Himalayas, they experience denudation and acidic with low humus content. The soil found in the lower valley are fertile. So जो forest soil है, जहाँ पे भी forest का content होता है, forest present होता है, forest area, वहाँ पे हमें forest soil मिलता है। Okay. Next is, it is evident from the foregoing discussion that soil, the texture, quality, nature are vital for the germination and growth of the plant and vegetation including the crops. So हमें ये पता चल रहा है कि इसके texture, quality, nature and जो important है हमारे germination करने के crops के। Okay, soil are living system like other organisms. They too develop and decay and get degraded. Respond to proper treatment if administered in time. These have a serious repercussion on other components of the system of which they themselves are important part. So यहाँ इतनी discussion से हमें जो पता चला था वो ये था कि हमारा जो soil है वो different types का होता है, उसकी textures अलग होता है, उसकी quality अलग होती है, उसका nature अलग होता है और depending on हम उसको कैसे treat करते हैं वो हमें उसके हिसाब से उसका क्रॉप देता है। प्लस हमने बोला कि सॉइल ऐसे लिविंग स्ट्रक्चर भी है बिकॉज वो डेवलप भी करता है, डिके भी करता है, डिग्रेड भी करता है और जैसा हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं उसके हिसाब से और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड भी करता है। ओके, नेक्स्ट अब हम जो करने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हाँ अब इस चैप्टर में जो छोटा सा पार्ट बचा है, अभी तो हमने ये सारे सॉइल देख लिए कि 8 सॉइल कौन कौन से हैं। अब आप एक टेबल बनाओगे, उसमें 8 सॉइल्स के नाम लिखोगे, उनका कंडीशन लिखोगे, उनके पे लिखोगे कि क्या उनके एक्सेस में है और क्या उनके में एब्सेंट है, प्लस वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये टेबल एक छोटा सा बना लोगे जिससे आपका ये चैप्टर 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सॉइल डिग्रेडेशन। In a broad sense, soil degradation can be defined as a decline in soil fertility when the nutritional status decline and the depth of the soil goes down due to erosion and misuse. Soil degradation is the main factor leading to the depleting soil resource basin in India. The degree of soil degradation varies from place to place according to the topography, wind velocity and amount of the rainfall. So soil degradation क्या होता है कि जब भी हम लोग देखते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाए, उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो कम हो जाए, उसकी डेप्थ जो है वो कम हो जाए क्योंकि ड्यू टू इरोजन या फिर उसके मिसयूज से उसे हम सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा सॉइल रिसोर्स है वो हमारे इंडिया में डिप्लीट हो रहा है। द डिग्री ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो हर जगह से जगह पे डिपेंड करता है कि कैसे होगा अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी, विंड वेलोसिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो अगर आपसे पूछे कि सॉइल डिग्रेडेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं जिन पर वो रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या बोलोगे? वो है उसकी टोपोग्राफी प्लस विंड वेलोसिटी प्लस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर इज डिस्क्राइब्ड एज अ सॉइल इरोजन। सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन में डिफरेंस है। The soil formation process and the erosional process of running water and wind go on simultaneously, but generally there is a balance between the two processes. The rate of removal of fine particles from the surface of soil is same as the rate of addition of the particles to the soil. Sometimes such a balance is disturbed by human or
natural factors leading to a greater rate of removal of soil. Human activities too are responsible for soil erosion to a great extent. As the human population increases, the demand for the land also increases, and the forest and other natural vegetation is removed for human settlement, for cultivation, for grazing animal, and for other various things. Winds and water are powerful agents of soil erosion because their availability to remove the soil and transport it. विंड इरोजन, सो हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिपेंड जिसकी वजह से हमारा सॉइल इरोजन होता है वो कौन कौन से, विंड और water. In the region with heavy rainfall and steep slopes, erosion by running water is more significant. Water erosion is more serious and occurs extensively in different parts of the country. Takes place mainly in the form of sheet and gully erosion. तो ये हमारे टाइप ऑफ इरोजन होते हैं. तो जो हमारा इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन, जो हमारा सॉइल है उस पर जितना डिपोजिशन होता है उतना ही करीब करीब उसका इरोजन होता है. ये तो नॉर्मल फिनोमिना है. बट अगर हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर कोई नेचुरल फिनोमिना की वजह से डिपोजिशन जो है वो स्लो हो जाए और इरोजन ज़्यादा हो जाए तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. फिर बताएं कि दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. एक हो गया विंड और दूसरा हो गया वाटर. अब वाटर से जो डिपोजिशन होता है उसमें भी हमने दो टाइप दिए, एक है शीट एंड एक है गली इरोजन. Sheet erosion takes place on a level land after heavy showers and soil removed is not easily noticeable but is harmful since it removes the finer and more fertile soil. Gully erosion is common on steep slopes. Gullies deepen with the rainfall and cuts the agricultural land into smaller fragments and make them unfit for the cultivation. A region with large land, deep gullies or ravines are called badland topography. A ravine are widespread in Chambal Basin. Besides this, they are also found in Tamil Nadu and West Bengal. The country is losing about 8,000 hectares of land to riverine per year. ओके, सो हमें बताया गया कि दो टाइप के इरोजन होते हैं, जो कि एक हो गया शीट इरोजन और एक हो गया गली इरोजन. शीट इरोजन हमें जब मोस्टली कहाँ पे दिखता है, लेवल लैंड में, मतलब बराबर की लैंड में, जो कि हैवी शावर हैवी रेनफॉल की वजह से होता है. जबकि हमारा जो गली इरोजन है वो हमें स्टीप स्लोप्स पे दिखेगा. तो अगर आपसे पूछे कि शीट इरोजन कहाँ पे होगा तो वो फ्लैट लैंड पे होगा, और जो गली इरोजन होगा वो माउंटेनियस रीजन या फिर स्टीपी रीजन पे होगा. ओके, और इन सब इरोजन की वजह से हमें एक बैडलैंड टोपोग्राफी दिखती है. बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होता है? बैडलैंड टोपोग्राफी वो होता है जिसमें सॉइल जो है हमारा उससे कंटेंट ऑर्गेनिक कंटेंट चला गया है, उसकी वजह से वो सॉइल ऐसा हो गया कि अब उसमें मॉइस्चर नहीं है, फर्टाइल नहीं है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. उसको हम बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं. और ऐसी टोपोग्राफी हमें चंबल बेसिन और तमिलनाडु वेस्ट बंगाल में देखने को मिल सकती है. ओके, अराउंड 8,000 हमारे हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हर साल जाते हैं ये बैडलैंड टोपोग्राफी की वजह से. Soil erosion is a serious problem for Indian agriculture and a negative effect has been seen in other spheres also. Eroded material are carried down to the rivers and carrying capacity causes frequent flood and damage to the agricultural land. Deforestation is a major cause of soil erosion. Plants keep soil bound in roots and thus prevent erosion. They also add humus to the soil by shedding leaves and twigs. Forest has been denuded practically in most part of the country, but their efforts of soil erosion are more in hilly parts of the country. तो हमारा जो सॉइल है वो या फिर फॉरेस्ट है वो हर पार्ट से मोस्टली डिग्रेड हो चुका है, बट इसका जो इरोजन का ज़्यादातर स्टेप्स लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, हमारे जो हिली रीजन्स हैं वहाँ से. A fairly large area of arable land in the irrigated zone of India is becoming saline because of over irrigation. अब एक और प्रॉब्लम है वो है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, वो है ओवर इरिगेशन. The salt locked in the lower profile of the soil comes to the surface and destroys its fertility. Chemical fertilizer, absence of organic manure are also harmful to the soil. Unless the soil gets enough humus, chemical harden it and reduce its fertility in the long run. This problem is common and the command area of river valleys projects, which were the first beneficiary of the ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो हमने देखा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूजेज किया था, हाई यील्डिंग सीड्स की यूजेज की थी और इरिगेशन के यूजेज की थी, जिसकी वजह से हमारा जो सॉइल है
उसने अपने इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को लॉस किया था और वो ज़्यादा सलाइन हो चुका था. According to the estimate, about half of the total lands of India is undergone a degree of degradation. Every year, India loses millions of tons of soil and its nutrients in the agents of degradation, which adversely affects our natural productivity. So, it is imperative to initiate immediate steps to reclaim and conserve the soil. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सॉइल कंजर्वेशन. इफ सॉइल कंजर्व एंड एक्सॉर्शंस आर कॉज्ड बाय ह्यूमंस कोलोरली दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय ह्यूमंस. Nature has its own laws of maintaining and balance. Nature offers enough opportunities for humans to develop their economy without disturbing the ecological balance. Soil conservation is a methodological to maintain soil fertility, prevent soil erosion and exhaustion, and improve the degraded condition of the soil. Soil erosion is essentially aggregated by faulty practices. The first step in any rational solution is to check the open cultivable land on the slope from farming. Land with a slope gradient of 15 to 25% should not be uh, used for cultivation. If at all the land is used for agriculture, terrace should be carefully made. Overgrazing, shifting cultivation in some part of the India have affected the natural cover of the land and given rise to extensive erosion. It should be regulated and controlled by educating villagers about the consumer, counterbanding, counter terracing, regulated forestry, controlling grazing, over the cropping, mixed farming, crop rotation are some of the remedial measures. Efforts should be made to prevent gully erosion and control the formation. Finger gullies can be eliminated by terracing. In bigger gullies, this velocity of water may be reduced by constructing a series of check dams. Special attention should be made to control headed extension of the gullies. This can be done by gully plugging, terracing, or by planting over vegetation. In arid and semi-arid region, efforts should be made to protect cultivable lands from encroachment by sand dunes through developing shelter beds of trees and agroforestry. Land not suitable for cultivation should be converted into pastures for grazing. Experiments have been made to stabilize sand dunes in Rajasthan by the Central Arid Zone Research Institute. The Central Soil Conservation Board, set up by the Government of India, has prepared number of plans for the soil conservation in different parts of the country. These plans are based on the climatic condition, configuration of land, and social behavior of the people. Even these plans are fragmented in nature. Integrated land use planning therefore seems to be the best technique for proper soil conservation. Land should be classified according to the capabilities. Land use map should be prepared and land should be put to right use. The final responsibility for achieving the conservation of land will set on the people who operates it and receives its benefits. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉइल कंजर्वेशन पे बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि आप कंक्लूजन के लिए इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लेकर आ सकते हो. और इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप पूरा होलिस्टिकली इसको कवर करके एक कंक्लूजन हो सकते हैं या एंडिंग हो सकते हैं. जैसे कि अगर सपोज अभी इस साल ही 2024 में UPSC में मेंस में फॉरेस्ट पे एक आया था ऐसे. तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको हम इस तरह के इंट्रोडक्शन, इस तरह के कंक्लूजन से अगर एंड करें तो वो बहुत अच्छा है, जो कि होलिस्टिकली सब कुछ कवर कर रहा है कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अलग अलग मेथड दे रहा है तो काउंटर और इवन वो अलग अलग, अगर सपोज विंड से हो रहा है तो उसके लिए अलग मेथड दे रहा है, वाटर के लिए अलग से मेथड दे रहा है, फिर साइंटिफिक रीजंस दे रहा है, फिर रिसर्चेस के बारे में बता रहा है. तो बहुत अच्छा तरह से कंक्लूजन कर सकते हो. तो इस पर आप प्लीज़ ध्यान दीजिए और उसको एक दो बार पढ़िए ताकि आपको पता चले कि आंसर्स कैसे लिखते हैं और कैसे कंक्लूजन आप बना सकते हैं. सो होपफुली यू ऑल लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर और ये बुक की कवर कंप्लीट कर देंगे. ओके, सो थैंक यू.